Jai Hind everyone. This video is for those students who are scoring 90 or more in their UPSC prelims 2021. अब 90 and more में तो 200 तक मार्क्स आते हैं. If you are scoring more than 100, then I don't see no reason why you shouldn't be preparing for your mains wholeheartedly. But if you are scoring somewhere between 90 to 100 or 90 to 95 especially, so एक students के दिल में एक टेंडेंसी होती है that I'll wait for the result to come out. I try to sit and study, but then the whole idea of probably not getting in is kind of demotivates me और मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है. Now, in my personal opinion, if you know that regardless of the result, if you get in, you want to be all prepared for your mains 2021, and in that unfortunate situation, if you don't make it through this year, even then you are going to attempt this exam again in 2022. I think you should prepare for the mains with complete conviction. आप ये नहीं चाहते that whatever has happened to you this year, you don't want to repeat that next year either. दूसरी चीज, clearing the prelims does not count for anything unless you get through the mains, unless you clear the interview and you find your name in the final list. So what if next year you cleared the prelims but you don't get through the mains? So again, you don't want to make it a 5-year plan ना, पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है आपको कि चलो पहले प्रीलिम्स निकालेंगे फिर मेंस निकालेंगे. It does not count for anything. There are no consolation prizes. Now, अब मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है? So first of all, if you're scoring less than 85, less than 90, less than 85, तो आपको तो क्या करना है? उन स्टूडेंट्स को तो they need to sit down and re-evaluate their strategy. Maybe they are not studying well or they are not studying through right sources, या फिर maybe they need a completely a complete comprehensive course wherein they could cover everything properly. शायद उनकी preparation नहीं थी. Whatever could be the reason, there could be hundreds of reasons for not doing a decent job in the prelims. But if you are scoring more than 90, then you must prepare for the mains. Especially if you are also, like my point is that you shouldn't wait for the prelims result to come out. Now, mains की preparation कैसे करनी है? Now we know that we do not have so much time कि जहाँ पर आप एक महीना ethics की classes लगाएं. 1 month for ethics, 20 days for world history, 15 days for post-independence history, social issues, disaster management, governance, international relations, security issues, and so on. There are so many topics that normally we don't go through at least 4 months right before our prelims because like normally students are in the prelims fever, तो उसमें कोई सेंस भी नहीं बनाता. लेकिन हो क्या जाता है, बिकॉज हम 3-4 महीने प्रीलिम्स से पहले सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, तो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से हमारा काफ़ी डिस्कनेक्ट हो जाता है. कई बार क्या होता है कि हम प्रिपरेशन ही थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं. सो फॉर वन रीजन और अनदर वी टेंड टू लीव couple of modules, 2 modules, 3 modules for this period कि prelims के बाद में कर लूँगा. Okay, world history pending है, कोई बात नहीं, I'll cover it after the prelims. Post independence history, I'll cover it after the prelims. तो ऐसा भी हो जाता है. So we at CBL हम यहाँ पर 3-4 दिन से काफ़ी हमने प्लानिंग की, डिस्कशन की, क्या क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं जिससे हम आपको गाइड कर सकें फॉर योर मेंस 2021. हम कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहते थे विच शुड बी इन हार्मनी विद योर सेल्फ स्टडी. वी डिड नॉट वांट टू कम हियर एंड डिलीवर लेक्चर्स कि ये लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर्स, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू स्पेंड 3 hours every day watching lectures or 4 hours every day watching lectures. This is the time when you must practice answer writing. 2 टाइप में हम क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हैं अगर हम देखें. एक तो नॉर्मल क्वेश्चंस आपको आती हैं जो एग्जाम में. Indian political party system was going through a phase of transition and contradictions. Discuss. Indian universities are churning out graduates for the job market, but not necessarily researchers who could invent things. Critically analyze. एक इस तरह के सवाल आते हैं जो आप सॉल्व कर पाते हो, जो आपकी रेगुलर डेलिब्रेशन का भी पार्ट होते हैं. वो what do you mean by joint sitting? इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. Ticolo's केस के ऊपर क्वेश्चन आ गया. Now these are the kind of questions which are there in UPSC, but they are also part of your normal UPSC preparation. But कई बार क्या होता है, UPSC decides to ask you about the decolonization of Malayan Peninsula.
UPSC decides to ask questions about decolonization of Western Africa. Geography में when they ask question like कि why is it that Delhi is so polluted but similar kind of pollution related indicators are not seen in Mumbai or Calcutta. This is a kind of question जो अगर आपने पूरा साल पढ़ाई की है तो आप आंसर कर पाते हो. कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको क्वेश्चन आ जाता है क्रायोस्फीयर के ऊपर, तो थोड़ा हम स्ट्रगल भी कर लेते हैं. माई पॉइंट इज दैट हाउ डू वी प्रिपेयर सो दैट कि GS 1, 2, 3, 4 और essay में जो सबको आता हो वो हमें भी आता हो और हम उनसे अच्छा लिख के आए. नंबर 1. नंबर 2, how do we make sure that we do exceptionally well in 3 game changers? What are those 3 game changers? Ethics, essay and optional. Now, as far as first thing I will take up is your optional. Optional में आपको क्या करना है, जहां से भी आपने जो भी पढ़ा है उसको आप रिवीजन दीजिए, मल्टीपल रिविजन्स, ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन रिवाइज करिए. एंड नंबर 2, आंसर्स लिखिए. जितने आप आंसर्स लिखेंगे उतना आपका वहां पर फ्लो बनेगा, वहां पर आपको टाइम नहीं मिलेगा. इन योर एक्चुअल एग्जाम यू कैन आइदर थिंक और राइट. नाउ इफ यू जस्ट गो थ्रू योर सिलेबस एंड यू डोंट राइट आंसर्स, तो वहां पर आपको उतने अच्छे से फ्लो में आंसर नहीं लिख पाएंगे. सो आई थिंक एज फार एज ऑप्शन इज कंसर्न, it's time to consolidate your preparation and it's time to write answers. GS के लिए हम क्या कर सकते हैं? For GS we have devised one module. एक पूरा हमने मॉड्यूल बनाया है जिसके अंदर 75 डेज में हम आपको ऑलमोस्ट 750 मेंस क्वेश्चंस करवाएंगे. We'll go through 750 questions which are इक्विटेबली डिवाइडेड vis-a-vis GS 1, 2, 3, 4. तो उसमें इक्विटी है, इक्वालिटी नहीं है. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुड बी डिफरेंट फॉर GS 1 एंड GS 2 एंड सो ऑन. सो इन 75 days वी आर गोइंग टू कवर 750 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद यू. तो वहां पर आपको क्या फायदा है? एवरी डे यू विल बी गिवन 10 क्वेश्चंस. वो पॉसिबल क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड होंगे विद अ हार्मोनियस hybridization of static as well as current, so that you know how to place the current issues with your static information. आपकी static भी रिवाइज होगा GS 1 में, GS 2 में, 3 में, 4 में, और करंट भी होगा. एक एग्जाम्पल GST के ऊपर अगर हमें क्वेश्चन पूछना है कि GS 2.0 की रोलिंग आउट कैसे होनी चाहिए थी या कैसे होनी चाहिए एंड सो ऑन, उसको हम बेसिक GST के साथ में फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ GST पे हमने अगर क्वेश्चन भी बनाना है तो हम इस हिसाब से बनाएंगे कि आपका बेसिक भी कवर हो और आपको करंट भी आपका पूरा अप टू डेट रहे. यहां पर विल ट्राई टू कवर all the important issues that have been in news for the last 2 years. Issues की बात मैं कर रहा हूं, और हम आपको मॉडल आंसर्स नहीं देंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देंगे. बट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स दैट व्हेन you cover so many questions with students and you give them model answer, somewhere you clip their own original thinking. This is what we don't want to do with you. हम ये चाहते हैं कि you take complete benefit of our model answers. I beg your pardon. You take complete benefit of our important pointers जो हम आपको रिसर्च करके दे रहे हैं. But you must bring out your own original writing style. उसको मुझे लगता है कि रिवॉर्ड किया जाएगा. नाउ इसको हम पूरे के पूरे कोर्स को डिलीवर कैसे करेंगे? आई वुड क्विकली गो थ्रू दी टाइम टेबल विद यू सो दैट आपको पता लगे कि हाउ विल प्रोसीड विद दिस कोर्स. नाउ the course is starting from 24th of October, like 25th of October from coming Monday. सबसे पहले हम कवर करेंगे आपके साथ GS 3. So you will get 2 videos. These videos are going to be on YouTube only. These videos में हम इकोनॉमी आपसे स्टार्ट कर देंगे और एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. 5 days में आपको 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे. आप अपने टाइम में उनमें से जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनको आप लिख सकते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप समझ सकते हैं. डिस्कशंस होंगे तो यू विल टेक कंप्लीट बेनिफिट ऑफ दैट. एवरी सैटरडे देयर इज गोइंग टू बी अ essay writing session. This is going to be of prime importance for you. Normally what happens is that unfortunately
during our preparation years, we do not focus on essay writing as such. In fact, ever since the pattern has changed since 2013 and this new pattern of GS 1, 2, 3, 4 has come up, हमारा जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा कंसाइज, टू द पॉइंट लिखने वाला डेवलप होता जा रहा है. उसकी वजह से एसे के लिए कंप्लीटली जो एक बहुत पोएटिक तरीके से लिखने का जो एक तरीका होता है उसकी हम इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बिकॉज देर इज दिस, बोलते हैं ना, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स चाहिए आज आपको. वो क्या है कि आपको पॉइंटर फॉर्म में लिखना आना चाहिए फॉर योर जीएस पेपर्स, क्रिस्प फॉर्म में फॉर योर जीएस पेपर्स, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट गो एंड राइट एसेज इन अ लॉन्ग विंडेड वे, बट हल्का सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको लिखना आना चाहिए फॉर योर एसेज. सो हम आपके एसे के सेशंस लेंगे वेर इन विल फोकस ऑन हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट. दिस विल बी एन अनेबलिंग सेशन. ये आपको हेल्प करेगा टू कम अप with better introductions, better conclusions, better bodies. Probably अगर से मानो लेट्स से हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, you may have 10 points in your mind जो आपको लगता है कि अगर टूरिज्म पे ऐसे आएगा तो I'll be able to write it. या लास्ट ईयर का हम ऐसे उठा लें, simplicity is the best sophistication. You may have 20 points in your mind, but इस डिस्कशन से क्या होगा कि आपको शायद 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जिसको आप बेटर प्लेस कर पाएंगे. सो ऐसे राइटिंग होगी हर सैटरडे. Monday to Friday, you will be provided with 10 subjective questions. The videos are going to be on YouTube. One video will come YouTube and our app and website, of course. One video will come at 2 o'clock and another one at 6 o'clock. Now, Sundays को आपके होंगे टेस्ट. The course that we have designed, it is not just the coverage of the syllabus, but it will also have test series included in it. संडेज को आपका सबसे पहले एसए होगा टेस्ट 1, देन अगेन जीएस 3, इकोनॉमी की क्लासेस एंड एनवायरनमेंट. उसके बाद में देन यू विल हैव साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी इश्यूज. तो आइडिया क्या है, यू विल सी द वीडियोज आर गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, सो यू विल सी हाउ बेनिफिशियल दे आर फॉर यू. नाउ उसके बाद में वी आर टेकिंग 3-4 days ऑफ फॉर 2 reasons. एक तो दिवाली है, सेकेंडली मोर देन 500 स्टूडेंट्स from our platform, they have cleared Haryana HCS exam. So we have decided to conduct offline tests for them as well. And उनकी भी फिर टाइमिंग्स इसके अराउंड ही क्लैश कर रही है. सो इन 3-4 दिन अब हरियाणा HCS वाले बच्चे भी उतने इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने उनको डेडिकेट करने के लिए सोचा है. There are about 502 students who have already registered with us who have cleared the prelims for Haryana HCS. Now, इसके बाद में we will resume from 8th of November. So in 10 sessions, so in other words, through roughly 100 subjective questions, your economy will be covered. Similarly, in 4 sessions, so roughly 35-40 subjective questions, all the important science and tech themes would be covered, and so on and so on. Again, next Saturday, answer writing session. Up now, by 13th of November, your GS3 will be completed. So you will have one complete GS3 test. So first test is going to be about essay. पहला टेस्ट हम essay का इसलिए ले रहे हैं so that you still have about 2 months to work on your writing style. पहला टेस्ट आप देना with your raw skill set. उसके बाद में GS3 complete test. Then after GS3, we are starting with GS4. इसका रीजन क्या है? What I have realized that GS4 is considered to be a very elastic subject by students in terms of their preparation. There are so many students. For example, there was this a candidate from our city, Chandigarh only. Many years ago, she was a doctor from PGI. She got rank 2. And one of the students asked her that what did she read for ethics, and she was like, ethics के लिए कौन पढ़ता है? मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा. And honestly speaking, she wasn't lying. And then there are other students who read a lot, yet they may get decent marks in ethics and may not get decent marks in ethics. So ethics एक ऐसा subject हो चुका है, either it's coming naturally to you and you're scoring. Like I met one student who recently visited our office and he said that, sir, I scored 160 marks, 55, something like this. And I couldn't believe, उसके जो बाकी GS के मैंने आंसर्स पढ़े उसको देखकर. And then he actually showed me his mark sheet जो यूपीएससी ने निकाली 2 साल पहले. एंड आई वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. सो या तो एथिक्स में हमने क्या किया है, बहुत केयरफुली
आपका पूरा कोर्स डिजाइन किया है सो दैट क्या जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस के ऊपर विल टेक एथिक्स के क्वेश्चंस करेंगे हम, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज, क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। तो एथिक्स को भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देयर इज वन जिसको आप थोड़ा सा साइकोलॉजी एंड फिलोसफी पार्ट ऑफ एथिक्स बोल सकते हैं। मॉरल्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या होता है, इस तरह की चीज़ें, एप्टीट्यूड क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इस तरह की चीज़ें। एंड देन व्हाट ऑल कैन वी लर्न फ्रॉम सो मेनी थिंकर्स आउट देयर, फिलोसोफर्स आउट देयर। इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट इफ यू हैव टाइम, I am taking completely free political science and IR classes on YouTube. उसमें I have already covered couple of thinkers, Socrates and Plato. If you have time, although I don't suggest उन बच्चों को जिनका बस अब मेंस हो ही रहा है पक्का, प्रीलिम्स हो रहा है पक्का, but if you have time, I strongly suggest that you go through those videos until I cover all the thinkers. उससे भी आपको ethics में बहुत help होगी, because when you learn about Socrates, Plato, Aristotle, Machiavelli, Immanuel Kant, when you learn about Hobbes, Locke, Rousseau, when you learn about Karl Marx, when you learn about all these thinkers, Lenin and Hannah Arendt and so on, you automatically develop this aptitude for this exam, GS4. Anyways, now हम आपको एथिक्स करवाएंगे सिमिलरली, रफली 150 हम क्वेश्चंस करेंगे एथिक्स के, और इसके भी आपको वो तो चलता ही रहेगा, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग सेशन चलते रहेंगे हर सैटरडे को, एंड देन वी विल टेक अनदर टेस्ट फॉर एसे का, एंड देन GS4 कंप्लीट टेस्ट। आफ्टर GS4 वी विल स्टार्ट विद GS2 फ्रॉम 29th November ऑल द वे टू 11th December। 11 दिसंबर तक क्या होगा, आपके गवर्नेंस वाला पार्ट, IR वाला पार्ट और पॉलिटी वाला पार्ट। GS2 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स यूजुअली उनको आता होता है बट इवेंचुअली मार्क्स नहीं आए होते। यू आस्क स्टूडेंट्स कि आपने GS2 कैसा हुआ सर, अच्छा हुआ, मार्क्स कितने आए, 78, मार्क्स कितने आए, 75, मार्क्स नहीं निकाल पा रहे बच्चे। उसका रीजन क्या है, हमारी जो GS2 की प्रिपरेशन रहती है, primarily the preparation is revolving around a single book, Lakshmikant, and that book is not written with keeping mains in consideration. That book is relevant for prelims, and the kind of questions that are showing up in the exam, very theoretical, it's increasingly becoming redundant even for the prelims. You can't answer a difference between a state and a nation by reading Lakshmikant. You can't answer a question on, say, constitutionalism or committed judiciary and so on by reading Lakshmikant. But anyways, not taking anything away from the book, my point is that that book is not designed keeping GS2 in mind. So here in these classes, I think you will draw great benefit, especially in terms of how to interpret GS2 questions properly. How to interpret questions which are there in GS2, how to interpret them properly. In fact, हम पहली क्लास में आपसे बात करेंगे that whenever you encounter any question, first thing that you must do is to go for the right interpretation. इस क्वेश्चन को मैं इंटरप्रेट ठीक कर रहा हूँ। Second thing, स्ट्रक्चर, आंसर में स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड देन उसके बाद में आप लिखना स्टार्ट करें। सो वी विल फोकस अ लॉट ऑन IR, political issues and governance, so that you ace GS2. And I am very convinced and I can guarantee that if you attend this module properly, there will be a drastic difference in your answers after this module. Now, last but not the least, हम करेंगे GS1. Why have we kept GS1 here? बिल्कुल एंड में क्यों? As I've said earlier, GS1 जो है ना, उसमें फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री में यूपीएससी ने ठान लिया है कि जिसने बिल्कुल हिस्ट्री नहीं पढ़ी और जिसने काफी हिस्ट्री पढ़ी है, there is not going to be any difference. We are again going to ask you, there hasn't been any question on world history of late, no question on post independence history. तो अगर आप देखेंगे कि GS1 जो है वो कई बार स्पेशली हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में काफी इरेटिक हो जाता है। नॉर्मली आप वेस्टर्न अफ्रीका की डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस नहीं पढ़ते। नॉर्मली आप मलयन पेनिनसुला के डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस, यू डोंट गो थ्रू दैट। नॉर्मली अगर इफ अ क्वेश्चन कम्स अप दैट कि पानीपत में क्यों लड़ाई होती थी, नो, दिस इज समथिंग
You don't answer because you've read it somewhere and you've read it here and there and Tamil Nadu की NCERT and Karnataka की NCERT and Punjab की NCERT. This is something that you answer based on your personality. You apply your logic, you process the information that you have and then you answer. Numismatic art के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, so you answer it with your wisdom. So हमने क्या किया यहाँ पर आपके साथ में एक चीज होगी कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, These two modules, I can guarantee you कि जितनी डिटेल में भरत सर ने उनको करवाया है, he has been teaching history option for all these years, तो वो आपको more than sufficient है. तो वो जो 2 मॉड्यूल्स हैं वो आपको right from the beginning, right from the onset of the module, हम आपको क्लासेस ड्रॉप कर देंगे. If you want to learn about American Revolution, French Revolution, if you want to learn about unification of Germany, and if you want to learn about Cold War and World Wars and this and that, आप उस मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं. यहां पर हमारा फोकस क्या रहेगा? We'll try to think of possible questions जो वो पूछ सकते हैं आपसे GS1 में. एक तो GS1 हम एग्जाम से राइट पहले करेंगे तो क्या होगा कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें रहेंगी, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, सोशल इश्यूज की. दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि GS1 अच्छा होना बहुत जरूरी है. इट इज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्स जो आप जाकर देते हो, एसए के बाद में आप GS1 देने जाते हो. अगर GS1 अच्छा हो जाए तो आपके उस वीक की टोन अच्छी सेट हो जाती है. GS1 थोड़ा खराब हो जाए then it becomes like slightly different, like you need another good exam to get over poor attempt at GS1. तो हमें लगता है कि हम GS1 पे हम अच्छे से फोकस करेंगे लास्ट के 15-20 डेज. वंस दैट इज डन, अब आपके 8 टेस्ट हो चुके होंगे अभी तक. GS1 का टेस्ट, हाफ टेस्ट, GS1 का फुल टेस्ट, GS2 का हाफ टेस्ट, GS2 का कंप्लीट टेस्ट. तो एक तो आपके 8 टेस्ट हो चुके हैं. ऑलमोस्ट 700 आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं. और उसमें ऐसा नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू बी वेरी इम्पर्सनल विद यू इन द सेंस कि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है. विल ट्राई टू इम्पार्ट वट एवर, लाइक आवर टीम ऑफ लाइक 10 फैकल्टी मेंबर्स दैट वी हैव हियर, विल ट्राई टू इम्पार्ट whatever we can find कि could be useful for you. जो भी हमें लगेगा कि ये राइटिंग स्टाइल इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस तरह से आप अच्छा लिख सकते हैं, we'll try to do that. Also एस्से में भी अगर आप देखेंगे तो अभी तक आप के 8 एस्से राइटिंग सेशन हो चुके हैं और आपके 4 एस्से के टेस्ट हो चुके हैं. द एस्से के टेस्ट का जो पैटर्न रहेगा, we'll try to emulate UPSC as much as we can, in the sense that ये नहीं कि आपको एक एस्से दे दिया कि चलिए इसके ऊपर एस्से लिखिए. Reality is a shadow of an idea. इसके ऊपर ऐसे लिखिए. We are not going to do that. We'll give you 2 sections, and in both the sections you will be presented with few options, and you are allowed to choose one essay and then write. Why are we doing it? Because it's very important that during your preparation days you develop the art of choosing the right essay as well. One of my political science students, उनके साथ में क्या हुआ बैक इन 2015-16, उन्होंने एस्से चूज किया. तो आई वाज लाइक कि आपने नैम के ऊपर एस्से लिखा, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट एक ऑप्शन थी. बोले नहीं सर नहीं लिखा. एंड आई वाज लाइक व्हाई वुडंट यू डू दैट? आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपको नैम के ऊपर यू कैन राइट पेपर्स एंड पेपर्स एंड पेपर्स, एंड येट यू डिसाइड टू गो इन सम अदर टेरिटरी जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट भी नहीं फील कर रहे. चलिए, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट डिसाइडेड टू नॉट राइट ऑन बॉर्डर इश्यूज again. So my point is that it's very important for you to select that essay out of those 4 options. It's very important for you to choose that essay जहां पर आपको compare to others better expertise है. And I don't think you should have this preconceived notion कि you know what, I am from blah 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 background, so when I write my essay, examiner will get to know that I have this as an optional, so he will give me lesser marks. इतना ज्यादा एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है नहीं सोचे. आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी करके आए. उन्होंने आपसे अगर नॉन अलाइन्ड मूवमेंट पे ऐसे पूछा है, आर वी लिविंग इन कोल्ड वॉर 2.0, अगर आपको इस पे कोई क्वेश्चन आया है और अगर यह आपको कोई ऐसे उन्होंने दे दिया, टू व्हाट एक्सटेंट इज इट फेयर टू से कि या इंडो पैसिफिक एज 21st century's rimland. अब बोलते हैं कि अगली लड़ाई होगी साउथ चाइना सी में, जर्मनी है अगला, इंडो पैसिफिक.
अब उस पर आपको ये नहीं सोचना कि यार मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है, तो मैं लिखूंगा तो एग्जामिनर विल गेट टू नो दैट ओ दिस एस इज रिटन बाय अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट एंड देन इंस्टेड ऑफ गिविंग मी 150 मार्क्स ही विल गिव मी 20 मार्क्स. ऐसा कुछ नहीं है. डू योर बेस्ट. ओके, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पिक द एसे प्रॉपरली. तो इस तरह से करते करते हम आपको टिल द लास्ट डे आपकी हैंड होल्डिंग रहेगी. दिस शेड्यूल is provided to you in the description of this video as well as in the comment section in the form of a pinned comment, so you can download it from there as well. Now how are we going to deliver the lectures? How are you going to watch the lectures, download the PDF, take the test? Will we evaluate your answers? How will we evaluate your answer and so on? एक मिनट में उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ. This course primarily is designed for only those students who are clearing their prelims this year. But as I've said earlier, if you're scoring more than 90 marks or somewhere around that and you want to prepare again, then this course is also important for you. अगर एक third category student की है, if you are prepared somewhere, you have already given somebody 1,37,000 rupees, 2 lakh rupees, 150, something like this, और आपने पूरा साल तैयारी कर ली है and you want to prepare again, then it becomes very difficult for anybody to spare out similar kind of money again. Then again what you should do, this course is for you. Through this course you should revise. कहीं पर भी अगर आप 1 साल पढ़े हो, उन्होंने आपको कुछ नोट्स तो दिए होंगे, कुछ तो पढ़ाया होगा, कुछ तो आपने पढ़ा होगा, उसको बेस बनाकर इस 75 डेज के प्लान के साथ में आप स्टिक करें. दिस प्लान इन एनी केस आपको यही करना है. अगर आप इससे स्टिक करते हैं, even if you are not getting through, primarily this course is for those who are getting through. अगर आप उस प्लान से स्टिक करते हैं तो क्या होगा, 5th Jan के बाद आपको पता होगा कि मेरा GS 1, 2, 3, 4 is well prepared, my essay is well prepared, now I have Feb, March, April, May to prepare for the prelims. आप अच्छे से नेक्स्ट ईयर के लिए बेटर प्लेस्ड हैं, नंबर 1. नंबर 2, जिनका ये क्लियर हो रहा है इस बार का प्रीलिम्स, all your essays will be marked by the faculty. All the test, whatever जो भी आप हमें टेस्ट लिख के देंगे, that will be marked by the faculty. हम यहाँ पर आपके आंसर्स चेक करेंगे, हम आपको रिप्लाईज भेजेंगे पूरे कंप्लीट. ऑन एन एवरेज पहले 60 डेज में 10 दिन के गैप के बाद आप हमें, बिकॉज ऑलरेडी हमारे खुद के ही काफ़ी बच्चों का प्रीलिम्स हुआ है, तो आई नो कि देयर इज गोइंग टू बी अबाउट 70-80 स्टूडेंट्स हो जाएंगे इसके, जो 100 के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिनका प्रीलिम्स हुआ है. तो 100 बच्चों के अगर आपको अच्छे से आंसर मार्क करने हैं, वी डोंट आउटसोर्स आवर आंसर्स कि हमने कोई, वी हैव नॉट एम्प्लॉयड पीपल हु विल मार्क इट फॉर यू. आई वांट दी जो मेंबर्स हैं, कोर मेंबर्स, जो 8 लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ पर प्रॉपरली पढ़ाते हैं, हम वी ट्राई हियर, वी एट सीबीएल वी ट्राई दैट अ पर्सन हु इज टीचिंग हिस्ट्री इज फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड, अ पर्सन हु इज टीचिंग पॉलिटी इज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, अ पर्सन हु इज टीचिंग इकोनॉमी शुड बी एबल टू टीच इकोनॉमिक ऑप्शनल एंड लाइकवाइज सोशल इशूज, सोशियोलॉजी बैकग्राउंड एंड सो ऑन. तो मैं चाहता हूँ कि फैकल्टी वाले लोग ही उसको आंसर्स को चेक करें, तो उसमें हम 8-10 दिन के गैप में आपको आंसर्स चेक करके भेज देंगे. नाउ सेकंड थिंग, इस कोर्स के लिए आपको करना क्या है, इस कोर्स का प्राइस क्या है. 2 चीजें. दिस कोर्स जिसको हम बोल रहे हैं मेंस 2021, ये जो कोर्स है इसमें आपको लेक्चर्स जो हैं, ओनली लेक्चर्स, दे आर गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब एट 2 PM एंड 6 PM. ये जो लेक्चर्स की वो जो 10 क्वेश्चंस और उनके जो मॉडल आंसर्स हैं, वो मॉडल आंसर लाइक नॉट द राइट वर्ड बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी ऑन आवर ऐप जिसका नाम है चेतन भारत लर्निंग. सेकेंड थिंग, हमारी वेबसाइट है chetanbharat.com, वहां पर भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं. Whenever you will watch any lecture there, underneath that lecture there is going to be a button called download PDF. वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, जो भी आप आंसर्स लिखेंगे, अगर आप वीडियो के नीचे ये आंसर लिख देंगे तो वी विल इवेल्युएट इट ऑनलाइन ओनली. अदरवाइज इफ यू वांट टू राइट हैंड रिटन आंसर्स, आप इवेल्युएट करना चाहते हैं तो क्या होगा कि आप टेस्ट देंगे,
आप उनको आंसर को लिखेंगे, आप हमें स्कैन कॉपी भेजेंगे chetanbharat@gmail.com के ऊपर, हम आपको ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे. दिस गोइंग टू बी अ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल. तो वहाँ पे हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. यू विल प्रोवाइड अस द आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्कैन कॉपी एंड विल रिप्लाई टू यू. तीसरी चीज़, एसेज जो हैं उनकी भी इवेल्यूएशन जो है वो इसी तरीके से होगी. इस कोर्स की कॉस्ट क्या है? वी आर गोइंग टू चार्ज समवेयर अराउंड, नॉट समवेयर अराउंड, लाइक एग्जैक्टली 10,000 rupees plus GST. So in 10,000 rupees you will get 750 subjective questions. इनके मॉडल या आंसर्स बोल दो या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बोल दो. दिस प्लस you will get 8 sessions and then you will get 4 tests of essay. So in each test you will get about 6 essays. So somewhere around 24 essays, and you will also get 16 tests. 16 आपके टेस्ट होंगे कंप्लीट. आई होप कि 75 डेज में इसके थ्रू हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, फील फ्री टू गेट इन टच विद अस. आपको क्या करना है, बस कीप वन थिंग इन माइंड दैट 2 things are going to be on YouTube. That is the video of 5 questions each, like 10 questions that we will discuss every day. आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस कोर्स, अगर आप प्रीलिम्स आपका हो रहा है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू गेट इन टच विद अस. आई कैन प्रॉमिस कि आपको कम से मतलब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा. मैं इसे क्वांटिफाई नहीं करना चाहता कितने मार्क्स आपके बेनिफिट हो सकता है. आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा विद द राइट काइंड ऑफ टीम अराउंड. So I wish you all the best. Take care.